So hi guys, welcome to the next video in which we'll discuss about Middle Ages. And earlier, if you all remember, we talked about Ptolemy's, Ptolemy's and how the concept of corpus juris civilis was found. But now we'll move on to the next concept rather than the historical underpinnings of IL, which is the Middle Ages now. So essentially, in the Middle Ages, there are two divisions which we have to note. One division is between law of merchant, the second is between the maritime code. Because at this period of time, there is increased trade between states. Between states. Right. So that is why it is very important to know the concept of meeting of minds, which is essentially known as consensus ad idem. Okay. So for example, if you are entering into a contract, right, if you want to enter into a contract, I'll not get into the legal specificities of it, but if we want to enter into a contract, we need two people, or we can have more than two as well, but essentially we need two, right? One who makes the contract, then other one who is the receiving end of the contract, right? And it is the thing, these things happen, right? These things happen, but how did they happen? They only happen because there is meeting of minds. There is no coercion. Remember this, right? So whenever there is meeting of minds, contract law applies, and the contract law between different states is known as international trade law specifically nowadays, but at that particular moment of time there is no international trade law. There was no international trade law, so that is how. So now the division were between, in the Middle Ages, the concept started of trade between states, and the division was between law of merchant and maritime code. In law of merchant, it was specifically a rules code, as it is written here. It is basically a code of rules, okay, in which merchants of different states came into play, and they did trade in goods and services, and the set of rules were known as the law of merchant code, right? And in maritime code, for example, there is any shipping involved. If there is any shipping involved, if there is any shipping involved, that is when the maritime code will come into play, because most of the trade was in sea, right? जो सी से जो भी चीज़ हो रही है वो मैरीटाइम कोड के अंतर्गत आएगी. आपको इसका ध्यान रखना है. आपको जब भी आप मिडिल एजेस का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आपको टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है? टाइम पीरियड के बाद लिखना है ये, और फिर डिवीजन क्रिएट कर दीजिएगा कि किस तरीके से डिवीजन हुई थी लॉ ऑफ मर्चेंट एंड मैरीटाइम कोड में. देन यू हैव टू कंटिन्यू विद initial paragraph, right? Either we could start with the, for the first time in Middle Ages, the application of law went through radical changes. Yes, it is more rhetoric in nature. We have to understand this, that this is more rhetoric, but we can write it, right? It makes a lot of sense. So what do we mean by
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो ऑपरेशन पहले था इंट्रा, दैट इज वो आपस में लोगों के होता था जो स्टेट के बाहर के नहीं होते थे, स्टेट के अंदर. अब स्टेट के बाहर हो रहा है तो इसलिए वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है बस. ठीक है. तब चर्च चर्च का बहुत बोलबाल था. ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए. ठीक है, जो भी चीज़ होती थी वो अथॉरिटी से होती थी चर्च के. ठीक है. और जो मैरीटाइम लॉ भी बना था एज वेल एज जो लॉ ऑफ मर्चेंट भी बना, मर्चेंट रूल्स जो बने थे वो भी चर्च की अथॉरिटी के बिना नहीं बनते थे, क्योंकि उस टाइम चर्च सुप्रीमेसी थी. क्योंकि हम उस समय में हैं जब बहुत ज़्यादा रेडिकल नेचर था सोसाइटी का, बिकॉज सोसाइटी वॉज रिलीजियस एंड रेडिकल, रिलीजियस प्लस रेडिकल. अगर आपको इसके बारे में भी एक वीडियो चाहिए, रिलीजियस और रेडिकल सोसाइटीज़ कैसे थी, उसका आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. राइट. सो the developments led to the foundation of international law. The English law established what? Law of merchant code rules which dealt with foreign traders. This code was of universal application. और अभी भी इस कोड की बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में भी डाली गई है. तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की हिस्ट्री भी पूछी जाए, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की हिस्ट्री भी अगर पूछी जाए, तो हमें मिडल एजेस लिखना बहुत ज़रूरी है. It is very important to write it. Then we came to one of the best periods, which is known as the Renaissance period. Renaissance period फिलोसफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फिलोसफी और लॉ एक तरीके से इंटरमिंगल होते जा रहे थे. क्योंकि फिलोसफी में क्या होता है, वो बताते हैं कि समाज में क्या चल रहा है उनके हिसाब से. ठीक है. अब समाज में जो चीज़ चल रही है वो सोशोलॉजी में भी आएगा. ठीक है. और समाज में अगर कुछ लॉ से कम हो रहा है, ठीक है, तो वो लॉ में तो आएगा ही ना. ठीक है. और अगर लॉ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का हो गया है तो उसमें इंटरनेशनल लॉ आएगा. राइट. तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर्स लिखेंगे. तो रेनेसां पीरियड में एक होली ट्राइफेक्टा था, होली ट्राइफेक्टा ऑफ मिस्टर फ्रांसिस्को विक्टोरिया, मिस्टर सुआरेज एंड एल्बेरिको जेंटली. यहाँ मैंने लिखा हुआ है दैट ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट ही technically is not. Who is the father of international law? It is written here, as we all know, Mr. Hugo Grotius. We'll come to the concepts and intricacies of it as well. What were the politics which were being played in the academical arena at that particular moment of time? But right now we have to understand that if you want to get marks, it is as simple as that. If you want to get marks, we have to write technical points. Right. That is the key. So we'll start with Mr. Vittoria. Just write a few things, or if you kind of forget the major ones, I recommend you not to forget, but try to remember someone like Hugo Grotius or maybe Alberico Gentry. I'll try to tell it in a storyline so that you all will understand. So Mr. Francisco Vittoria argued that IL international law should be applicable to non-Europeans as well. तो एक बात ये भी है कि यूरोप ने ये चीज़ ठान ली थी
कि पढ़ाई लिखाई के सारे काम हम ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, उसमें से ही एक इंसान निकले, मिस्टर विक्टोरिया साहब। उन्होंने बोला कि यार हमें सिर्फ यूरोप के लिए तो नहीं सोचना है, हमें बाहर वालों को लिए भी सोचना है, ठीक है। ये करण जौहर बन रहे थे एक्चुअली। अब आपको ध्यान रहेगा कि करण जौहर कौन बन रहा था, फ्रांसिस्को विक्टोरिया, ठीक है। फिर आए सुआरेस साहब, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ ऑल द लॉज इट इज इंटरनेशनल लॉ विच इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर, ठीक है। ऑब्लिगेटरी क्या है, सिर्फ इंटरनेशनल लॉ, इन्होंने यही बोला, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ को एक हार्ड लॉ की तरह क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद आए मिस्टर जेंटली। जेंटली बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है ना, ये है फादर ऑफ सिस्टमैटिक लॉ ऑफ नेशंस, पहली बात। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी, डी जियोरे बेली विच इज़ लॉ ऑफ वॉर। फिर हो ग्रोशियस साहब आए, उन्होंने क्या लिख दिया, डी जियोरे बेले एक्ट पैकिस, ये दो शब्द ऐड कर दिए इन्होंने, ठीक है। एक्ट पैकिस, लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इन्होंने तो वॉर लिख दी थी, तो ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, बट क्योंकि इन्होंने पीस की बात नहीं करी, इनको इतना बढ़ावा नहीं दिया गया, ठीक है। वही पॉलिटिक्स उस समय भी थी, इस समय भी है और रहेगी आगे आने वाले समय में, बट हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें ना फंसे। दोनों अपने समय के बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, बट जो इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई थी लॉ ऑफ वॉर, क्योंकि उस टाइम वॉर बहुत होते, छोटी छोटी चीज़ों पे वॉर हो जाते थे, प्लस आइडियोलॉजिकल वॉर तब भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आई थिंक तब सबसे ज़्यादा थे, अब तो फिर भी खान पीने और एआई पर भी लड़ाई हो सकती है, बट तब तो आइडियोलॉजिकल वॉर्स का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये आईएल की बहुत इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम था डी जियोरे बेली, तो आप इनको याद रखने का कोशिश करिएगा। उसके बाद हुगो ग्रोशियस साहब, उन्होंने लिखी डी जियोरे बेली एक पैकिस, लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन किया, इन्होंने ओपन सीज की बात करनी शुरू करी। जो अनक्लॉस का सीन आता ना यूनाइटेड नेशन का, जो लॉ ऑफ सीज है, उसका इनिशिएशन जो एक फर्स्ट गियर में जब गाड़ी आई थी लॉ ऑफ सीज की, वो इनकी वजह से ही आई थी, तो इनका हमें सराहना करनी पड़ेगी इस मामले में। हुगो ग्रोशियस साहब की बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। आप कहीं पे भी स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड कुछ भी है, आईएल से रिलेटेड कुछ भी है, तो स्टार्ट करने की कोशिश करिए ग्रोशियस साहब से, बहुत ज़रूरी है, याद रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर याद रह जाए तो बल्ले ही बल्ले है। अगले हम बात करेंगे 7 फर्स की अगले लेक्चर में। शुक्रिया। एक्टिव रिकॉल भी करने की कोशिश करेंगे हम अगले लेक्चर में, प्लस एक बारी ये वाला कॉन्सेप्ट सारे हो जाए, तब हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी लॉ के, प्लस आई विल ट्राई टू ऐड ऑफ CLAT PG एज वेल, विल ट्राई टू इंक्लूड देम for the further more classes. Thank you.